वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे IIT JEM 2016 रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी एंड काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी। बेसिकली काउंटेबिलिटी उसके सिलेबस में नहीं है, बट अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ से टच होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल सेपरेट वीडियो में डिस्कस होगा। इस बार टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 9 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में थे। 9 में से 3 क्वेश्चन आपके सिंगल करेक्ट थे जो 1 मार्क्स के थे, एंड 6 जो सिंगल करेक्ट थे वो आपके 2 मार्क्स के थे, एंड 4 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में जो मल्टी सेलेक्ट पूछे जाते हैं वो सारे 2 मार्क्स के थे, एंड टोटल 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप यानी कि पार्ट सी में पूछे गए थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के थे एंड 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। पेपर काफ़ी ईजी है, मॉडरेट है, बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा टफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि करना। क्वेश्चन नंबर 1, the sequence Sn of real number given by Sn is equal to sin pi by 2 upon 1 into 2 plus sin square sin of pi by 2 square upon 2 into 3 plus up to sin pi upon 2 power n upon n into n plus 1. Options are like this sequence is divergent, oscillatory, not a Cauchy and Cauchy sequence. See, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन तो आप उसमें दिमाग भी उतना ही लगाएंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप ज़्यादा अप्रोच में जाएंगे तो वो आपका टाइम लेके जाएगा। दिस सीक्वेंस इज नथिंग बट द SOPS ऑफ द सीरीज समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity sin pi upon 2 power n and into n plus 1. So this Sn is nothing but the partial sum of this series. So this series is convergent if and only if its SOPS is convergent. SOPS means sum of partial sums, यानी कि आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम देखते हो, अगर वो सीक्वेंस आपकी कॉन्वर्जेंट होती है तब आप बोलते हो कि दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सीरीज? अगर आप इसकी SOPS लो, सो SOPS विल बी समेशन n is running from, or let me take k is running from 1 to n sin of pi upon 2 power k upon n into k into k plus 1. So this is my SOPS and this is nothing but your Sn sequence, and this series is convergent because if I choose an to be sin pi upon 2 power k upon this is ak k into k plus 1, this is less than or equal to 1 upon k into k plus 1, which is same as 1 by k square plus k. Since your k is running from natural number, so this quantity is less than or equal to 1 by k square. आप ऊपर की नीचे की क्वांटिटी को डिक्रीज करोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी आपको इंक्रीज मिलेगी। सो दिस 1 upon k square plus k is less than or equal to 1 by k square, and this as a series convergent. We know that 1 upon k square, where k is running from 1 to infinity, is convergent by p test. So this sequence is less than to some sequence which is convergent as a series. So by limit comparison test, we say the summation k is running from 1 to infinity sin pi upon 2 power k upon k into k plus 1. This is convergent by comparison test. So this is convergent means its SOPS is convergent and its SOPS is nothing but Sn. So this Sn is convergent. And we know that on R, a Cauchy sequence if and only if it is convergent. So option D will be true. This is a Cauchy sequence. And there is one more way to solve this problem. अगर आप ये शो कर दो कि this is monotone and bounded, then again the sequence is convergent. तो आप चेक करना कि this is monotone as well as it is bounded. तो ये आपकी मोनोटोन शायद इंक्रीजिंग होगी और बाउंडेड अबव होगी, तो वहां पे इनइक्वालिटी का यूज करके इसको शो कर सकते हो। दिस इज मोनोटोन प्लस बाउंडेड। सो फर्स्ट का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, लेट f बी स्ट्रिक्टली मोनोटोन कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज्ड AB सच दैट f of a पर वैल्यू लेस देन a and f of b पर वैल्यू ग्रेटर देन b. Then which one of the following is true? Option A, there exists exactly one C in open AB such that f of C बराबर C. That means there exists exactly one fixed point.
Option B, there exists exactly two fixed point in open AB. Option C, there exists no fixed point. Option D, there exists infinitely many fixed point in open AB. See, we have given a function f from R to R. It is defined on closed AB to R, and this f is strictly monotone. F is strictly monotone plus continuous function, and they have given a condition f of A is less than A and f of B is greater than B. चलिए इस कंडीशन का यूज करते हैं, इसको ग्राफिकली विजुअलाइज करते हैं. See, this is say closed interval A to B. Similar interval you can make on the y-axis. So let me choose this point is A, this point is B. We have given f of A पर जो वैल्यू है वो A से लेस है. So f of A will be below A. So it will be somewhere here. Let me call this point is f at A because f is less than A. So it will be below A point. And f of B is bigger than B. And this is your B point on y-axis. So f of B will be somewhere here because f of B is bigger than B. Now observe, this is point B, this is point A. So this is straight line, or you can make this is y equal to x line. y इक्वल टू एक्स लाइन, क्योंकि जो भी फिक्स पॉइंट होते हैं, आप फिक्स पॉइंट किसको बोलते हो, जो एफ एक्स बराबर एक्स वैल्यू दे इसको आप फिक्स पॉइंट बोलते हो. बेसिकली देखो तो आप एफ एक्स फंक्शन को देखते हो और y इक्वल टू एक्स फंक्शन को देखते हो, तो जहां जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो उनके फिक्स पॉइंट बनते हैं. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि अगर आपका एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दिस इज और y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन को कितने बार कट कर सकती है. सी, इसकी ए पर वैल्यू यहां पर है, बी पर वैल्यू यहां पर है, and this function is continuous. So this function is starting from this and this function is strictly monotone. Clearly this will be strictly increasing function, क्योंकि ये f of a पर यहाँ पर है, b पर यहाँ पर है, तो ये डिक्रीजिंग तो नहीं हो सकता. So this function is strictly increasing. तो आप इसको लेकर के कैसे भी जाओ, एक बार तो एटलीस्ट यहाँ पर कट करेगा ही करेगा, एंड एटमोस्ट एक बार कट कर सकता है, क्योंकि दो बार कट करने के लिए इसको वापस मोड़ के आना पड़ेगा. बट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन. तो अगर ये इंक्रीजिंग मोड में तो कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा, तो ये हमेशा इसको एग्जैक्टली एक बार कट करेगा. सो दिस इज विजुअलाइज, दिस इज ग्राफिकल अप्रोच. आप थ्योरेटिकल अप्रोच से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट मस्ट हैव एग्जैक्टली वन फिक्स पॉइंट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो ये आप इसको हमेशा विजुअलाइज कर सकते हो इस तरीके से. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. Let S be a closed subset of R and T be a compact subset of R such that S intersection T is non-empty. Then what can you say about S union T? चलिए सॉल्व करते हैं. दिस S is closed and T is compact and S intersection T is non-empty. That means they are not disjoint. Then what can you say about S intersection T? S union T. See, this T is compact. 1 second. They are asking for S intersection T, not for S union T. So what can you say about this S intersection T? See, this S intersection T is always contained in S as well as in T. Since T is compact and in R, compact if and only if closed plus bounded. But in general metric space, this statement is not true. If you have a compact set, then it need not to be closed plus bounded always. If it is compact, then it must be closed and bounded, but converse is not true in arbitrary metric space. This S intersection T is contained in T and T is bounded. So we can say this S intersection T is bounded
Since S is closed, T is compact, so T is closed, so S is closed, T is closed, and we know that arbitrary intersection of closed side is again closed, so this is closed as well. So closed plus bounded imply compact. So S intersection T is compact. So option C will be correct for this. Question number 4. Let S be a series and T be the series of real number, then which of the following is true? So they are asking the convergentness and divergentness of two series. So your S is summation K is running from 1 to infinity 1 upon 2k minus 1 into 2 power 2k minus 1, and your T is K is running from 1 to infinity, sorry, K is running from 2 to infinity 3k minus 4 upon 3k plus 2 whole power k plus 1 by 3. Clearly this S is a convergent series, because we can observe in this way. Observe 1 upon 2k minus 1 into 2 power 2k minus 1. Your k is running from natural number, so this sequence is less than or equal to 1 upon 2 power 2k minus 1. So this 2k minus 1 is always a natural number. So observe one thing, this is convergent. So we know that this sequence is convergent, or this as a series it is convergent. 2 power 2k minus 1. So this is convergent. अगर आप इसको verify करोगे, so it will be your geometric progression. And इसका अगर आप common ratio find करोगे, so that will be less than 1. So it is the geometric sum, so it is convergent. And you can also do by ratio test. अगर आप D-elements ratio test लगाओगे तो वहाँ से भी आपको result मिल जाएगा. So this is convergent. Hence, by limit comparison test, this is convergent as a series. So 1 upon 2k minus 1, 2 power 2k minus 1 is convergent by limit by comparison test. So this is convergent by comparison test. What about T? T is series where k is running from 2 to infinity, this to the power this. Can you observe this sequence? अगर कोई भी सीरीज कॉन्वर्ज करती है तो जो एसोसिएटेड सीक्वेंस होती है वो हमेशा जीरो पर जाती है. नाउ ऑब्जर्व दिस एसोसिएटेड सीक्वेंस. लेट मी कॉल ए एंड टू बी 3k minus 4 upon 3k plus 2 whole power k plus 1 by 3. क्या ये जीरो पर कॉन्वर्ज करेगी? सी दिस इज सेम एज 1 minus 4 by 3k 1 plus 2 by 3k whole power k plus 1 by 3. So as k is tending to infinity, this term is going to 1, this term is going to 1, so this will be 1 to the power infinity. तो जब भी आपके पास 1 to the power infinity केस बनेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो. So this converges to e power limit k is tending to infinity. जो भी आपका फंक्शन होता है f फंक्शन, ये वाला फंक्शन, उसमें -1 हो जाएगा. 1 माइनस के 4 by 3k 1 plus 2 by 3k minus 1, एंड जो पावर होती है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा. सो दिस इज k plus 1 by 3. So this is a special form 1 to the power infinity. This limit you can check. अगर आप इस लिमिट को चेक करोगे, so this limit will not go to 0. इसको सिंप्लीफाई करना है. जैसे यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, देन उसके बाद एल हॉस्पिटल यूज करोगे तो वहाँ से आपको डायरेक्टली दिख जाएगा दिस सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू 0. So this sequence is not going to 0, hence the series cannot be convergent, because this is a necessary condition. अगर कोई भी सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसकी एसोसिएटेड सीक्वेंस हमेशा 0 पर जाती है, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट गोइंग टू 0. सो एस इज कॉन्वर्जेंट बट टी इज नॉट कॉन्वर्जेंट. बस ये आप लोग चेक करना, सिंपली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है इसमें, वो भी 2 या 3 लाइन की, इससे ज़्यादा नहीं है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. एस इज कॉन्वर्जेंट बट टी इज डाइवर्जेंट. Question number 5.
let an be a sequence of positive real number satisfying 4 upon an plus 1 is equal to 3 upon an plus an cube upon 81. Then all the terms of the sequence lie in. इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ के चलना. सी अगर ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हुई, आई एम नॉट सेइंग दिस इज कॉन्वर्जेंट, अगर ये कॉन्वर्जेंट हुई तो हमेशा अपने फिक्स पॉइंट पे कॉन्वर्ज करती है. सो लेट ए एन कॉन्वर्जेस टू एल, सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज कॉन्वर्जेंट. अगर ये एल पर जाएगी तो ए एन प्लस 1 अपॉन एल पे जाएगा. आई विल बी हैविंग 4 अपॉन एल इज इक्वल टू 3 अपॉन एल प्लस एल क्यूब बाई 81. इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे. सो इट विल बी 1 बाय एल इज इक्वल टू एल क्यूब बाई 81. दिस विल इम्प्लाई एल क्यूब माइनस एल पावर 4 माइनस 81 बराबर 0. सो दिस विल बी एल स्क्वायर माइनस के 9 एंड एल स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एल माइनस 3 एल प्लस 3 एल स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0. एंड वी हैव गिवन a1 is 1. See, the way they have defined this expression, if your an is 1, so your a2 will be positive, a3 will be positive. So you can feel this thing, all the terms of this sequence is positive. All the terms are positive. So it can converge either 3 और -3. एंड रियल नंबर की सीक्वेंस है तो हमेशा रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगी क्योंकि रियल नंबर का जो सिस्टम है वो हमेशा कॉम्प्लीट सिस्टम है. सो एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस. तो आप आर में है, आर में जो भी सीक्वेंस होगी वो आर में ही कन्वर्ज करेगी. तो यहाँ के जो रूट आएंगे वो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे. सो दिस सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू कॉम्प्लेक्स प्योरली कॉम्प्लेक्स रूट. सो इट कैन कन्वर्ज आइदर 3 और टू -3. So L is either 3 or -3, but -3 is not possible because the sequence is of positive real number, so it can only converge to 3. तो अगर ये sequence convergent हुई then it will converge to 3. Now let us verify whether this sequence is convergent or not. अगर मैं ये शो कर दूं कि this sequence is convergent, so it will converge to 3. This is same as an plus 1 is equal to 4 upon 3 by an plus an cube by 81. I have this one. Now let me call this as phi of an. So phi of an is equal to an plus 1 because this is your function of an. तो अगर आपका जो ये डेरिवेटिव है, सॉरी दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल क्योंकि आपके सारे an पॉजिटिव हैं, सो दिस इज वेल डिफाइंड, सो योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इन द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की मॉडुलस वैल्यू लेस देन 1 हो जाए देन वी से दिस इज कन्वर्जेंट एंड दिस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड. उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. फाई डैश ऑफ an, इट विल गिव यू इस 4 को ऐसे रख लेते हैं. इसको करेंगे तो माइनस के 4 अपॉन 1 सेकेंड. द एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो इट विल बी, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. से 4 इंटू 81 इंटू an एंड फ्रॉम हेयर आई विल बी हैविंग 81 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 243 प्लस an का यहाँ करेंगे तो an टू द पावर 4. अब इसको डेरिवेट करते हैं. सो डेरिवेट विल गिव मी 243 प्लस an पावर 4 होल स्क्वायर. इसको यहाँ रोकेंगे 243 प्लस an पावर 4. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल गिव मी 4 इंटू 81 दैट इज 324 माइनस, इसको रोकते हैं. सो 324 an, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू an क्यूब. सो 4 इंटू an cube, I will have this one. Now observe, this is same as, यहाँ से 324 कॉमन ले सकते हैं. So 324 will be common. So from here I will be having 243 plus an power 4 minus 4
an cube, I will have this one. देख लेना मैं कहीं बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ. So 4an power 4 upon 243 plus an power 4 whole square. Observe, it will give me phi dash of an modulus value of this expression in the initial approximation. That means a1 is equal to 1 पर अगर आप फाइंड करोगे, so it will give you 324. यहाँ से आपके पास बचेगा 243. This value is 1, this value is -4, क्योंकि आप a1 के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो. So this will be 243 minus 3, that will be 240, and this value is 244 whole square. So this is 244 into 244. इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं. चलिए इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं. अगर आप 4 से इसको डिवाइड लगाओगे, सो इट विल गिव यू, सो दिस इज 6, दिस 1, इसको 4 से लगाओगे तो दिस विल बी 40. अगेन इसको 4 से लगाते हैं, सो इट विल गिव यू 61, एंड 4 से इसको लगाएंगे तो इट विल गिव यू 81. अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे, सो यू कैन सी दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3240, and it will be 61 into 61, that is approximately 3600. So this modulus value is less than 1. So by fixed point iteration method, the derivative of this function in the neighborhood of initial approximation is less than 1. So this an is convergent. So this is the sufficient condition. This an is convergent, and this an can only converge to the fixed point of this phi function, and fixed point we have found the fixed point are 3, -3 and 2 कॉम्प्लेक्स रूट थे. सो इट विल कॉन्वर्ज टू 3. तो अगर आप अब ऑप्शन पे आओगे, ऑप्शन ए 1/2 to 3/2, बट दिस इज कॉन्वर्टिंग टू 3, तो 3 के नेबरहुड वाले पॉइंट तो होने ही चाहिए. दिस इज फॉल्स, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी फॉल्स, सो ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. पहले आपको क्लेम करना पड़ेगा कि दिस सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, तभी आप इसको बोल सकते हो कि 3 के नेबरहुड के पॉइंट आएंगे. Question number 6. Let S be a subset of R and del S denote the set of all points in R such that every neighborhood of X contains some point of S as well as some point of complement of S. So del S की definition, if X belongs to del S, then for every epsilon positive, X minus epsilon to X plus epsilon intersection with S will give you non-empty, because every neighborhood of X containing some point of S as well as some point of S complement. So X minus epsilon, X plus epsilon intersection with S complement is also non-empty, and this is true for every epsilon positive. So from here you can observe one thing, this every neighborhood of X is intersecting S, and X आपका S में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. So that is the point. So we can say this X is the limit point of S as well as limit point of S complement. चलिए ऑप्शन पे आते हैं. ऑप्शन ए del Q of R. That means boundary of Q is R. अगर मैं ये शो कर दूं कि this R is contained in del Q, then I am done. Pick any arbitrary real number. Let X be any real number and take any epsilon positive. So you can observe X minus epsilon plus X plus epsilon will intersect Q, क्योंकि आप किसी भी रियल नंबर का कितना भी स्मॉल नेबरहुड लो, उसमें हमेशा इनफाइनाइट रैशनल आएंगे एंड उसमें हमेशा इनफिनाइट इररेशनल आएंगे. सो इट विल इंटरसेक्ट Q complement also. So X is any real number, so X is satisfying this property. So I can say this X will be the point of del of Q, because your here S is Q. So this X is a member of del Q. That means this real number is contained in del Q and del Q is contained in R. So we can say this del of Q is R. So this is correct. Option B,
sorry, this is true, then they are asking which one of the following is false. So option A is true option. Option B, del of t complement is same as del of t. Observe करो just the way they have defined the definition of boundary. Boundary में वो सारे पॉइंट आ रहे हैं जिनका हर एक नेबरहुड S को भी इंटरसेक्ट करेगा और S कॉम्प्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट करेगा. सपोज करो कि अगर आप डेल ऑफ S कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर रहे हो, सपोज x is in the del of S कॉम्प्लीमेंट. So इसका मतलब क्या होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव every neighborhood of x will intersection S complement as well as complement of S complement, that is nothing but S. Intersection S complement whole complement. So it is intersecting S complement as well as complement of S complement, but complement of S complement is nothing but your simply set S. So by definition, boundary of S and boundary of S complement are same. So option B is true. Boundary of T complement is same as boundary of T. So option B is true. Option C, del of T union V is same as del T union del V, where T comma V is contained in R such that T intersection V is empty set. So they are disjoint. अगर मैं एक T set बनाता हूँ, say T is open 0 to 1 and S बनाते हैं say 1 to 2. So clearly you can observe this T and S both are disjoint. बाउंड्री ऑफ टी, सो बाउंड्री ऑफ टी क्लियरली सिंगलटन 0,1. आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. सो दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट. तो आपको टी सेट गिवन है 0 to 1 ओपन इंटरवल. आपको वो पॉइंट पिक करना है जिनका हर एक नेबरहुड टी को भी इंटरसेक्ट करे और टी कॉम्प्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट करे. सी दिस इज योर टी सेट, तो टी को इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए आप कोई भी इसके अंदर का पॉइंट ले सकते हैं. बट अगर कोई भी अंदर का पॉइंट लेंगे तो उसका हर एक नेबरहुड टी के आउटसाइड वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो अगर आप 1 पॉइंट पिक करेंगे तो 1 का नेबरहुड बनाइए, तो 1 का नेबरहुड ये आएगा. चाहे कितना भी स्मॉल नेबरहुड लो, वो हमेशा 1 के राइट से भी पॉइंट लेगा, 1 के लेफ्ट से भी पॉइंट लेगा. जैसे लेफ्ट से पॉइंट लेगा वो टी का मेंबर होगा, राइट से पॉइंट लेगा तो वो टी कॉम्प्लीमेंट का मेंबर होगा. एंड सिमिलर आर्ग्यूमेंट फॉर 0 पॉइंट. सो बाउंड्री ऑफ टी विल बी 0,1 एंड सिमिलर आर्ग्यूमेंट फॉर एस, बाउंड्री ऑफ एस विल बी 1,2. Now take T union S. T union S will be open 0 to 1 union 1 to 2. This is your T union S. Now take boundary of T union S. So boundary of T union S, अगर आप T union S को ऑब्जर्व करो, इसको यहां बना लेते हैं. So this is 0, this is 1, this is 2. So this is your S, this is T, and T union S will be. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा. स्टिल दे आर डिसजॉइंट. अगर मैं इसको क्लोज नहीं बनाऊंगा तो यहाँ प्रॉब्लम बनेगी. सारे आर्ग्यूमेंट सेम रहेंगे. सो T union S will be open 0 to 1 union 1 to 2. So your T union S will be open 0 to 2 and boundary of T union S will be 0,2. So you can observe boundary of T union S is 0,2, but boundary of T union boundary of S is 0,1,2. So they are not equal. So option C is false, and according to question, option C is correct because they are asking which one of the following is false, and this is single correct. अगर आपका एक ऑप्शन ट्रू हो जाए, बाकी की आपको वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट ऑप्शन डी को अगर आप बाय डेफिनेशन जाएंगे तो वो इजीली प्रूफ हो जाएगा. बाउंड्री ऑफ टी इज सेम एज टी क्लोजर इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट का होल क्लोजर. तो इसको वन साइड मैं प्रूफ कर देता हूँ, अदर वे से आप प्रूफ कर देना. चलिए इसको प्रूफ करते हैं. एंड अगर आपको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप हमेशा मेरे से फुल सॉल्यूशन मांग सकते हो. आप कमेंट करोगे तो आई विल गिव यू द फुल प्रूफ. ऑप्शन डी इज सेइंग डेल ऑफ टी इज सेम एज टी क्लोजर इंटरसेक्शन आर माइनस टी क्लोजर. इसको एक बार वेरीफाई करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. लेट दिस बी माई होल स्पेस से एक्स एंड टी बी अ सबसेट ऑफ दिस. सो लेट मी पिक, दिस इज माई टी, आई एम जस्ट पिकिंग इन दिस वे. तो अगर आप इसके बाउंड्री पॉइंट देखोगे, सो बाउंड्री पॉइंट विल बी दिस रिंग. सो दिस विल बी द बाउंड्री ऑफ टी. एंड ऑब्जर्व टी क्लोजर. टी क्लोजर में अंदर वाले पॉइंट भी आएंगे और
सारे के सारे लिमिट पॉइंट भी आएंगे। तो टी क्लोजर आपका ये पूरा डेंस वाला सेट बन जाएगा, पूरा का पूरा। सो दिस होल विल बी योर टी क्लोजर। अब उसका इंटरसेक्शन लेना है आपको आर माइनस टी करोगे तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एंड कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर लोगे तो ये बाउंड्री उसमें इंक्लूड हो जाएगी। आई डोंट हैव द चॉक ऑफ डिफरेंट कलर्स, अदरवाइज आई वुड हैव डन द ड्राइंग फॉर यू। तो अगर आप आर माइनस टी देखोगे, सो दिस विल बी योर आर माइनस टी, दिस होल इज आर माइनस टी विच इज आउटर ऑफ दिस रिंग। देन उसका क्लोजर लोगे तो जो बाउंड्री है ये उसमें आ जाएगी। देन अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ आपको रिंग मिलेगी, एंड दैट इज नथिंग बट योर बाउंड्री ऑफ टी। जैसे एक अलग फिगर में फील करते हैं, दिस इज योर टी सेट एंड दिस इज योर टी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप टी क्लोजर लोगे, सॉरी आर माइनस टी लोगे, सो आर माइनस टी इज दिस, एंड उसमें भी अगर आप क्लोजर ले रहे हो तो आप ये पॉइंट मिला रहे हो और उसके साथ ये बाउंड्री भी मिला रहे हो, एंड आपका टी क्लोजर कितना है ये सारा है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यू विल ऑलवेज गेट दिस बाउंड्री। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, एंड यू कैन प्रूव बाय थ्योरी ऑल्सो। वी हैव टू शो दैट दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। सो अगर मैं ये शो कर दूं कि दिस साइड इज कंटेंट इन दिस एंड दिस इज कंटेंट इन दिस, देन आई एम डन। तो मैं वन वे शो करता हूं, let x be any arbitrary member of boundary of t, that is for every epsilon positive x minus epsilon x plus epsilon intersect t, and there is no guarantee that x is in t. So we can assume अगर x आपका t में होगा so x will not be in t closure, sorry x will not be in t complement. So this is the case when x is in t. You can discuss when x is not in t. So every neighborhood intersect t, that is x is in t dash because x is the limit point of t, and x is a member of t also. So we can say this x is in t dash which is contained in t union t dash, which is same as t closure. So your x is in t closure, and by definition every neighborhood of x intersects t complement as well. So we can say x is a member of t complement dash which is contained in t complement union t complement dash which is same as t complement closure, which is same as r minus t closure, because you are observing your complement inside t because your full space is r. So x is in this also, so we can say x is in the t closure intersection of r माइनस टी क्लोजर, एंड कन्वर्स भी इजी है। आप पहले ये पिक करना कि x t का मेंबर है या t कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, देन यू विल बी एबल टू शो दिस। देन x का कोई भी आप आर्बिट्री मेंबर लोगे तो वो हमेशा इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। सो x वाज द आर्बिट्री मेंबर ऑफ डेल ऑफ t, सो दिस इज सेइंग डेल ऑफ t इज कंटेन्ड इन t क्लोजर इंटरसेक्शन r माइनस t क्लोजर। सो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 7, ये जैम का फेवरेट क्वेश्चन है। वो हमेशा एक नए क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जहाँ से वो सम ऑफ द सीरीज पूछेंगे। सो दे आर आस्किंग सम ऑफ द सीरीज n इज रनिंग फ्रॉम 2 to infinity minus 1 power n upon n square plus n minus 2। ईजी क्वेश्चन है, आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन 12th क्लास में भी पढ़ के आए। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो इट विल गिव अस n इज रनिंग फ्रॉम 2 to infinity माइनस 1 पावर n, इसको फैक्टराइज करेंगे सो n 2 n 1, here we need minus 2 and here we need plus 1, so it will be of plus sign, it will be of minus sign, and again we can separate them. So this is n is running from 1 to infinity, this is 1 upon n minus 1, 1 upon n plus 2, यहाँ पे n plus 2 जाएगा, यहाँ पर माइनस का n minus 1, so 3 बचेगा। It will be same as minus 1 power n by 3, so you can observe this thing. So this side and this this expression and this expression both are same. अब आप n की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। बट योर n वाज रनिंग फ्रॉम 2 to infinity, so आपके पास दो अलग अलग सीरीज बन जाएंगी। समीशन n इज रनिंग फ्रॉम 2 to infinity माइनस 1 पावर n 3
और 3 को बाहर ले सकते हैं. दिस इज n minus 1 minus 1 by 3 summation n is running from 1 to infinity minus 1 power n upon n plus 2, where n is running from 2 to infinity, not from 1. इसको सेपरेट फाइंड कर सकते हैं, उसको सेपरेट फाइंड कर सकते हैं. तो अगर आप n की वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे तो 1 by 3, n को 2 पुट करोगे सो इट विल बी 1 by 1, n को 3 पुट करोगे तो माइनस के 1 by 2 प्लस के 1 by 3 when you put n to be 4, minus के 1 by 4 and so on. This will be minus of 1 by 3. n की वैल्यू 2 पुट करोगे सो 1 by 4 माइनस के 1 by 5 प्लस के 1 by 6 and so on. Clearly this is nothing but the expression of ln2. ln stand for real log. So 1 by 3 ln2, this ln denotes the रियल लॉगरिथम फंक्शन. अगर आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा वहां पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप LOG करके लिखते हो. सो दिस इज ln2 प्लस 1 by 3, इसमें माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 1 by माइनस 1 by 4 प्लस 1 by 5 माइनस 1 by 6 एंड सो ऑन. क्लियरली दिस इज लुकिंग लाइक दिस एक्सप्रेशन बट देर इज नो 1 minus 1 by 2 प्लस 1 by 3. तो मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. 1 minus 1 by 2 प्लस 1 by 3 को ऐड करा एंड यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 1 प्लस 1 by 2 माइनस 1 by 3. सो दिस इज नथिंग बट 1 by 3 ln2 प्लस 1 by 3 ln2 माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 6 माइनस 1 by 9. इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से एलसीएम लोगे सो एलसीएम विल बी 18. यहाँ पे आपके पास माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2, तो माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 5 करोगे तो माइनस के 5 बचेगा. सो इट विल बी 1 by ln2 1 by ln2, दिस इज 2 by 3 ln2 माइनस के 5 by 18. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. सो दिस वन इज इजी. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना. We have defined a function fx on the domain -1 to 1 open interval, then which of the following is true? So जो आपको फंक्शन गिवन है, this fx is 1 upon 1 plus mod x plus 1 upon 1 plus mod of x minus 1 for all x is in -1 to 1. -1 less than x less than 1. So we can redefine this function. This is same as 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus x or 1 plus 1 minus x when your x is lying between -1 and 0. क्योंकि -1 और x -1 से 0 के बीच में it will be -1. एंड जैसे ही आप 0 लेस देन x लेस देन 1 ये वाला डोमेन लेंगे, सो इस डोमेन में दिस फंक्शन विल बी mod x विल बी simply x because your x is positive and mod of x minus 1, the mod of x minus 1 will be negative in this domain, so this will be minus of x minus 1, so it will be 1 plus x plus 1 upon 2 minus x. वेरीफाई कर सकते हो, since mod of x minus 1 is defined as x minus 1 when x minus 1 is bigger than or equal to 0, or equivalently x is bigger than or equal to 1 and 1 minus x when x is less than 1. So x is less than 1 throughout, so this will be 1 minus x in both the cases. So your function is this. See, this function is differentiable, this function is differentiable, this is differentiable, this is differentiable, but except 0 this function is differentiable. 0 पर कुछ नहीं बोल सकते. चलिए f dash x फाइंड करते हैं इसका दोनों केसेस में. तो यहाँ पर इसको फाइंड करोगे, सो इट विल बी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इट विल बी 1 अपॉन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. आई विल बी हैविंग दिस वन. डोमेन लिख सकते हैं -1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1.
1 सेकेंड, दिस इज 1 माइनस एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस डोमेन में इसको वेरीफाई करते हैं कि हाउ द नेचर इज। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन दिस डोमेन, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अ square quantity, this is square, so this will be positive. That means this function is in increasing mode in this domain. And can you calculate this? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको ओपन करेंगे, सो इट विल बी -4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 4 प्लस 2, सो दिस इज 6x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो इट विल बी 6 इज कॉमन, x माइनस 1/2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो आई कैन यूज दिस in place of this. So let me write in place of this. So it is same as 6 into x minus 1/2 upon 1 plus x whole square 2 minus x whole square. Now let us make the graph of this function. अगर आप इस फंक्शन को ग्राफिकल अप्रोच करोगे, this is my derivative. So this in this domain your function is in increasing mode, and in this domain depends upon the point 1/2. So this is -1, this is 0, this is 1 and this is 1/2 point. अगर आप इसकी -1 पर वैल्यू चेक करोगे, so -1 पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एंड -1 पे आप राइट हैंड साइड से टेंड कर सकते हो, तो ये इसको हमेशा प्लस इन्फिनिटी पे ले जाएगा। तो ये -1 में कहीं ना कहीं यहाँ से आ रहा होगा फंक्शन, सॉरी इट इज नॉट करेक्ट, -1 पे ना कोई इशू नहीं है, -1 पे इट विल बी 1/2 प्लस के 1/3. Here I concluded wrong. So this is 1/2 plus 1/3 at x is equal to -1. So it will be 3 plus 2/6. So 5/6 वैल्यू हो जाएगी इसकी. So 5/6 will be somewhere here. यानी कि फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा. Then 0 पर इसकी वैल्यू देखिए, 0 पर आएगी इसकी 1 plus 1/2. So that is 3/2. 5/6 is less than 3/2. So 3/2 कहीं यहाँ पर होगा. तो फंक्शन आपका कुछ इस टाइप से जाएगा 0 पर. देन 0 से लेस देन x लेस देन 1. अब इस डोमेन पे आते हैं. अब इस डोमेन पर जब आपका x लेस देन 1/2 है, सो दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड x इज लेस देन 1/2, सो इट विल बी नेगेटिव, यानी कि फंक्शन इज इन डिक्रीजिंग मोड इन दिस डोमेन. तो अगर आपके 0 से लेकर के 1/2 में फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा 1/2 पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अगर आप 1/2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 1/2 विल बी इन दिस डोमेन. सो 1/2 पर वैल्यू आ जाएगी 1/1 plus 1/2 plus 1/2 minus 1/2. So it will be 2/3 plus 2/3. So this is 2 times 4, 4 minus 1, so 3/2. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So this is 2/3 plus 2/3, so it will be 2 times 2/3, so it will be 4/3. So 4/3 will be somewhere here. So फंक्शन आपका कुछ इस टाइप से आएगा, डिक्रीज करेगा. I am not focusing on the concavity or convexity. That is not the matter for this question. And 1/2 से लेकर 1 तक फिर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में जाएगा. This you can verify. जैसे आप 1/2 से आगे जाओगे, so this quantity is positive. So your derivative will be positive after 1/2. So after 1/2 your function will be in increasing mode. And 1 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. 1 पर it will give you 1/2 plus 1/1. So it will be 3/2. And this point is also 3/2 I think. So it will be 0 पर आपने वैल्यू निकाल दी, 0 पर 1 plus 1/2, तो ये आपका यहीं पर आ जाएगा फंक्शन. Now you have the nature of this graph. Let us come to the option. Maximum value of fx is 3/2, and 3/2 is occurring at 2.0 and 1, but 1 is not in the domain, so we cannot use this value. So we have to use this value because 1 is not in the domain. Option B, minimum value is 1/3.
बट मिनिमम वैल्यू या तो इस पॉइंट पर होगी या इस पॉइंट पर होगी, बट दिस वैल्यू इज 5/6 नॉट 3/2, so not 1/3. False. Maximum occurs at x is equal to 1/2, but maximum is occurring at 0. Minimum occurs at x is equal to 1, बट आपका 1 डोमेन में नहीं है और 1 पर आपका मैक्सिमा आ भी नहीं रहा, आपका मैक्सिमा सॉरी मिनिमा आपका माइनस के 1 पॉइंट पर. सो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट. Question number 9. Let f is a function defined from R to R such that fx is equal to x 1 plus x power alpha sine of ln x whole square, sorry ln x square. Sine of ln of x square if x is non-zero and 0 when x is 0. So this question was a wrong question in this examination. They have given marks to all in this question. चाहे आपने अटेम्प्ट कराओ या नहीं कराओ, IIT हमेशा सबको मार्क्स देगी अगर कोई भी गलत क्वेश्चन होगा, बट नेट के एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता. अगर नेट में कोई गलत क्वेश्चन आएगा, अगर आपने उसको अटेम्प्ट करा है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन मार्क्स टू ऑल. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें कहीं आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी. सो मिस्टेक ओनली इन वन पॉइंट, योर ln ऑफ x, 1 सेकेंड, दिस इज नॉट अगेन अ मिस्टेक. तो अगर आप मिस्टेक चेक करोगे तो मिस्टेक आपको मिलेगी नहीं. सो f of x is given this and the options are like at x is equal to 0 the function is continuous, differentiable, what are the restriction on alpha. See, we are assuming that f is continuous at alpha. अगर आपका फंक्शन अल्फा पर कॉन्टिन्यूस है तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाओ चाहे राइट हैंड साइड से जाओ आपको वैल्यू सेम मिलेगी. सो वी विल बी हैविंग लिमिट एज एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, दिस शुड बी सेम एज एफ एट 0. आई विल बी हैविंग दिस वन. So limit x is tending to 0 fx, so this is x plus x power alpha plus 1 sine of ln of x square is equal to 0 because the value of function at 0 is 0. Now this limit is going to 0, so this is possible when alpha is bigger than 0. अगर आपका alpha positive हो गया, so this is a bounded function, this is going to 0 and this will take this function to 0 if your alpha is positive. So this function is continuous when alpha is positive. Now what can you say about the differentiability of this function? अगर आप differentiability की बात करें, so let f is differentiable at 0. अगर ये 0 पर differentiable होगा, so limit x is tending to 0 fx minus f0 upon x minus 0. This limit exists. This is the definition of differentiability. That is limit as x is tending to 0, your fx is x 1 plus x power alpha or say x plus x power alpha plus 1 sine of ln x square, f of 0 पर वैल्यू 0 upon x exist and जो भी ये वैल्यू होगी, दिस वैल्यू अगर ये एग्जिस्ट करेगी सो इट विल बी f डैश एट 0. सो इट विल बी f डैश एट 0. सो लिमिट एज x इज टेंडिंग टू 0, दिस इज x प्लस x पावर अल्फा प्लस 1. x अगर आप डिवाइड लगाओगे सो इट विल बी 1 प्लस x की पावर अल्फा प्लस 1 से 1 हट जाएगा साइन ln x स्क्वायर. सो इट विल बी f डैश एट 0. सो एज x इज टेंडिंग टू 0, this limit will exist only when your alpha is positive. Alpha is, sorry, 1 second. So this limit exists when your alpha is positive. अगर alpha positive हो गया, so it will take this function to the 0. So अगर आपका alpha positive है, so it will take this function to 0. So your limit will exist in this case.
ऑप्शन पे आते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल व्हेन अल्फा इज 0 फॉल्स. ऑप्शन बी, continuous and differentiable when alpha is positive. So this should be true according to me. Option C, continuous and differentiable when alpha is lying between -1 and 0. And option D, continuous and differentiable when alpha is less than 1. Actually, I have committed a mistake while doing the continuity. So this function is differentiable when alpha is bigger than 0. So alpha अगर आपका bigger than 0, so this function will be differentiable. In continuity, I have committed a mistake. You can check it. अगर आप continuity की बात कर रहे हो, so limit x is tending to 0, fx, this should be same as f at 0. This is same as limit x is tending to 0, fx is x plus x power alpha plus 1 sine of ln of x square. This value will be 0. So x is tending to 0, it is going to 0. It will go to 0 only when your alpha plus 1 is positive. I just did alpha is positive, but that is not correct. So alpha plus 1 is positive. That means alpha is bigger than -1. तो अगर आपका alpha -1 से बड़ा है, so this function will be continuous. अगर आपका alpha bigger than 0 है, तो function will be differentiable. So according to me, option B should be true, continuous and differentiable when alpha is bigger than 0. क्योंकि उसमें ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा. चलिए एक चीज़ और करते हैं, अगर आप उसको डेरिवेट करें, सो एफ डैश एक्स विल बी, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, x की पावर अल्फा प्लस 1. सो पहले x की पावर अल्फा प्लस 1 का करते हैं, अल्फा प्लस 1 x पावर अल्फा साइन ln ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड प्लस x पावर अल्फा को रोकते हैं, साइन ऑफ ln एक्स स्क्वायर करते हैं. सो इट विल बी कॉस ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ln एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x. सो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, सो इट विल बी 2 अपॉन एक्स. सो अगर आप एफ डैश एट 0 फाइंड करोगे, सो इट वैल्यू विल बी 1, क्योंकि ये आपका पूरा इसकी वजह से 0 हो जाएगा एंड ये आपका ऑसिलेट करेगा -1 और 1 के बीच में, क्योंकि ln 0 आपका इन्फिनिटी होता है, माइनस का इन्फिनिटी. अगर आपका बेस वैल्यू बिगर देन 1 है, तो साइन इन्फिनिटी विल ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1, बट दिस 0 विल टेक दिस फंक्शन टू द 0. एंड यहाँ पर आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी. एज एक्स इज टेंडिंग टू 0, दिस विल बी योर 0/0 फॉर्म. तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी. इसको अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये लिमिट चेक करनी है कि ये लिमिट 0 पर जा रही है या नहीं जा रही, क्योंकि एफ डैश एट 1 की वैल्यू आपकी 1 आई थी बाय डेफिनेशन. सो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, दिस विल बी, 2 को यहाँ रखते हैं, पहले उसको कर लेते हैं अल्फा, और चलिए इसको चेक कर लेते हैं. इसको यहाँ चेक करते हैं. लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, 2 इंटू एक्स की पावर अल्फा को देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल बी साइन ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, एंड ln ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, सो 2/x, देन प्लस कॉस ln एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा करेंगे, सॉरी एक्स बार अल्फा करेंगे तो अल्फा इंटू एक्स पावर अल्फा -1. आई विल बी हैविंग दिस, एंड नीचे आपके पास x का करोगे तो 1 हो जाएगा, x का करोगे तो 1 हो जाएगा, सो इट वैल्यू विल बी 1. नाउ यू कैन वेरीफाई दिस लिमिट इज एज x इज टेंडिंग टू 0, as x is tending to 0, it is again 0/0 फॉर्म, एंड यहाँ पर ही आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी लाइक cos ln एक्स स्क्वायर. तो ये आपकी हमेशा -1 और 1 के बीच में बाउंडेड रहेगी. लेकिन यहाँ अल्फ़ा की पावर जो है x की पावर अल्फ़ा -1 है, तो ये 1 अपॉन और x की पावर अल्फ़ा -1 है, एंड अल्फ़ा इज बिगर देन 0.
अगर आपका अल्फा बिगर देन 1 नहीं हुआ, सपोज करो इन दिस पोजिशन इफ योर अल्फा इज नॉट बिगर देन 1, तो एज एक्स इज टेंडिंग टू 0 दिस वैल्यू विल गो टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अगर आप पॉजिटिव साइड से जाओगे सो इट विल गो टू प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव साइड से जाओगे तो डिपेंड करेगा। सो cos ऑफ ln x स्क्वायर इट इज बाउंडेड बिटवीन -1 and 1 एंड अल्फा इंटू एक्स की पावर अल्फा -1। अगर अल्फा बिगर देन 1 हुआ, 1 नहीं हुआ, सो दिस क्वांटिटी विल नॉट गो टू 0। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एंड हो सकता है आप एक बार और इस पे लोपिता रूल यूज करो तो इस वाले पोर्शन में भी प्रॉब्लम आ जाए। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम है। बाय डेफिनेशन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0, बट अगर आप इसकी f डैश एट 1 पर वैल्यू फाइंड कर रहे हो, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। This is bigger because of this alpha is only positive, not bigger than 1. So alpha has to be bigger than 1, but alpha is bigger than 1. This point is not mentioned in the option. So this is the problem in this question. So this question is wrong and marks to all have been given to all the aspirants. Question number 10. And अगर मैंने कोई step miss कर दिया तो आप verify कर लेना. Let Sn be a sequence of positive real number 2 of Sn plus 1 is equal to Sn square plus 3 by 4. If alpha beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 3 by 4 is equal to 0 and your first term is less than alpha, bigger than alpha, less than beta, then what can you say about this sequence Sn? अगर आप इस पे फिक्स पॉइंट मेथड अप्लाई करोगे, so your Sn plus 1 which is phi of Sn, this is Sn square by 2 plus 3 by 8. तो अगर आप phi dash of Sn फाइंड करोगे, so phi dash of Sn will be Sn. अगर आपकी the derivative of this function in the neighborhood of फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, अगर आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करोगे सो इट विल बी s of 1. अगर आपका s1 लेस देन 1 है सो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दैट इज श्योर. बट अगर आपकी s1 वैल्यू बिगर देन 1 है सो वी कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज दिस मेथड इज सफिशिएंट, नॉट नेसेसरी. सी योर Sn इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वी कैन फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अगर आप रूट फाइंड करोगे सो रूट्स विल बी 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 9/4, सॉरी बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac, तो प्लस के 4ac, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 दिस इज 3 एंड दिस वैल्यू इज 2 into 1, so it will be 2 plus minus k root 7 by 2. Now this value will be, अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे so 2 plus root 7 by 2, नेगेटिव साइन लोगे so 2 minus root 7 by 2, तो ये आपके पास बन जाएगा. रूट 7 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग, एंड 2 पॉइंट समथिंग में 2 अगर आप ऐड करोगे सो यू विल बी गेटिंग 4 पॉइंट समथिंग. 4 पॉइंट समथिंग को आप 2 से डिवाइड करोगे सो दिस वैल्यू विल बी बिगर देन 1 एंड 2 माइनस के रूट 7 इज 2 पॉइंट समथिंग, 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट समथिंग आएगा. सो दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आएगी. सो यू कैन से दिस इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 0. नाउ योर S1 इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा. फिक्स, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी हो. x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4, रूट्स आर माइनस का b दैट इज 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 माइनस के 4ac. ठीक है, तो आपके रूट आ गए 2 प्लस रूट 7/2 एंड 2 माइनस के रूट 7/2. Now let us observe this function. अगर आप let Sn be a sequence of positive real number satisfying 2Sn plus 1 is equal to Sn square plus 3/4. Here the mistake I am doing. ये जो कैलकुलेशन है दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग. अगर आप रूट फाइंड करोगे तो
प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो माइनस के 4 इंटू 3, 4 इंटू 3/2 4, दिस विल बी 4 माइनस 3 अपॉन 2, सो दिस वैल्यू विल बी 2 प्लस माइनस के 1 अपॉन 2. अगर आप 1 प्लस साइन लोगे सो दिस विल बी 3/2, नेगेटिव साइन लोगे सो 1/2. सो योर S1 is lying between 1/2 and 3/2. So from here you can observe this S1 is positive. Since your S1 is positive, so you can say the derivative of your function, or the derivative is positive for all n, because your S1 is positive, and the way they have defined Sn plus 1. Sn plus 1 is some positive quantity plus some positive quantity. So Sn plus 1 will be positive. So as phi dash of Sn is positive. So from here you can conclude your phi dash function is increasing mode. We cannot say about the sequence Sn whether this is decreasing or increasing. We cannot conclude anything, but we can say your phi function is increasing. तो आपके पास रूट आ चुके हैं. चलिए, your phi function is in increasing mode. Your S1 is lying between 1/2 and 3/2. अब S1 को कुछ भी पिक करो इनके इन बिटवीन 1/2 and 3/2, then you will be getting your Sn plus 1, your S2 will be positive. अगर आप S1 को कोई भी पॉइंट लो, so your S2 will be S1 square by 2 plus 3/8. This is this. Since S1 square is less than 3/2, so this is less than 9/4 into 2 plus 3/8, because your S1 is less than 3/2, so S1 square will be less than 9/4, so it will be 9/8 plus 3/8, so this is 12/8, and 12/8 is nothing but your 3/2. So your S2 is is less than 3/2. So your S2 is also less than 3/2, but we cannot calculate about S2 and S1. Which one is bigger? We cannot say anything about these 2 points. तो आप इस इनइक्वालिटी से यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते. एक काम करते हैं, इस S1 को कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पिक करते हैं इन बिटवीन 1/2 and 3/2. अगर आप आर्बिट्री देख रहे हो तो वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा. लेट अस पिक अ पर्टिकुलर पॉइंट. सिलेक्ट S1 is 1. अगर आपने S1 को 1 सेलेक्ट करा है, यू कैन चूज एनी आर्बिट्री नंबर. अगर आपने S1 को 1 पिक करा है, so let's say S2 will be 1/2 plus 3/8, and this will be 4 plus 3/8. This is 7/8. So you can observe your S2 is less than S1. This is for particular S1. क्योंकि आप यहाँ से आर्बिट्री पिक कर रहे हो, so we did not get anything about S2, क्योंकि आपका S2 भी less than 3/2 आ रहा था और कुछ नहीं बोल सकते. So your S2 is less than S1. Your phi function is in increasing mode. We can operate phi function. Phi of S2 is less than of phi of S1. The way you have chosen your phi function, phi of S1 will be S2. So this is S2 and this is S3. So your S3 is less than S2, S2 is less than S1. So we have this relation. Again operate phi function. अगर phi function increasing mode में तो inequality will be same. अगर एक बार और phi function operate करोगे तो phi of S3 less than phi of S2 less than phi of S1. Phi of S3 value is S4 less than S3 less than S2 less than S1 and so on. So you can observe this Sn is in decreasing mode. So this Sn is strictly decreasing. एंड आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो S1 की इन बिटवीन 1/2 एंड 3/2. सो आई हैव जस्ट चूजन ओनली 1 पॉइंट. आप किसी और पॉइंट पर चेक करोगे तब भी आपको Sn डिक्रीजिंग मिलेगी. सो योर Sn इज डिक्रीजिंग मोड एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस S1 इज लाइंग बिटवीन 1/2 एंड 3/2. दिस इज क्लियर. चलिए, ये चीजें मैं रफ कर रहा हूं. We have Sn is decreasing and
S1 is less than, S1 is bigger than 1 by 2, less than 3 by 2. So your first term is lying between 1 by 2 and 3 by 2. Can you observe your S1 is bigger than 1 by 2. So I'm just doing by the induction. So this is my base case. Your S1 is bigger than 1 by 2. So this is my base case of induction. So by induction hypothesis, let Sn is less than 1 by 2 and Sk is also less than 1 by 2 for all k is less than or equal to n. So I'm assuming each Sn is less than 1 by 2 up to n. Consider S of n plus 1. This is Sn square by 2 plus 3 by 8. And my induction hypothesis said this Sn is less than 1 by 2. So Sn square will be less than 1 by 4. So this is less than 1 by 4 into 1 by 2 plus 3 by 8. So this is nothing but 1 by 2. So your Sn plus 1 is again less than 1 by 2. So by induction hypothesis, I assumed this result is true up to n, and I have shown this is true for n plus 1 step. So by induction hypothesis or by mathematical induction, this each Sn is less than 1 by 2 for all n. So this sequence is monotonically decreasing and bounded below, wait, I have just committed a mistake here. I just assume this Sn is bigger than 1 by 2, not less than 1 by 2. So this term is bigger than 1 by 2. So this will be 1 by 4 into 1 by 2 plus 3 by 8. So this will be 1 by 2, not less than. So your Sn plus 1 is bigger than 1 by 2. So by induction, this tells this Sn is bigger than 1 by 2 for every n. For every n is a natural number. So this result is true. So your Sn is monotonically decreasing and Sn is bigger than 1 by 2. So your sequence is monotonically decreasing and bounded below by 1 by 2. So by monotone bounded criteria, this sequence is convergent. And जो ये sequence converge कर सकती है, ये हमेशा इस quadratic equation के root पे converge कर सकती है. So this sequence is decreasing mode and less than 1. This is bigger than 1 by 2 for every n. So this Sn is monotonically decreasing and bounded below by 1 by 2. So it will converge to 1 by 2. So Sn can converge either alpha or beta. इन दोनों पॉइंट पर कन्वर्ट कर सकती है क्योंकि ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पे कन्वर्ज करेगी, बट ये बीटा पर कन्वर्ज नहीं कर सकती क्योंकि मोनोटोन डिक्रीजिंग है. सो इट हैज टू कन्वर्ज ऑन अल्फा. सो इट विल कन्वर्ज टू अल्फा. सो ऑप्शन ए Sn is monotonically decreasing is true. Option B false. Option C limit of Sn is alpha true. And option D limit of Sn is beta false. So option A and C will be correct. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. Which of the following statement is or are true? This question was asked in part B. This is of multiple select. Option A, there exists a connected set in R which is not compact. क्या कोई connected set मिलेगा R में जो compact नहीं हो? अगर मैं R itself की बात करूँ, question number is 11. Option A, this R is minus infinity to infinity. And real number system में जो connected set होते हैं वो precisely आपके intervals होते हैं. तो आप जो भी interval pick करोगे वो हमेशा connected होगा. So this is an interval, so this is connected, but this is unbounded, hence it cannot be compact. So this is connected but not compact. So option A is possible. A is correct. Option B, arbitrary union of closed interval in R need not to be compact. Arbitrary union of closed intervals in R need not to be compact. True है, क्योंकि arbitrary union of closed interval का close होना भी कोई ज़रूरी नहीं है. अगर आप ये interval pick करोगे, n is running from 1 to infinity, say 1 by n to 1, और यहाँ से करते हैं इसको closed. तो अगर आप ये interval pick करोगे, so this is nothing but your open interval 0, open 0 closed 1. So this is countable union of closed interval
but this is not a compact set because it is not closed, so it cannot be compact. So option B is also true. And चलिए कुछ और भी चीज़ देखते हैं जो इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं. यहाँ पर आर्बिट्री वर्ड डिफाइन है ना. चलिए आर्बिट्री में जरूरी नहीं कि आप उसको काउंटेबल यूनियन डिफाइन करो. अगर आप ऐसा कोई पिक करो, से x be any real number, then take the union over the real number such that x to x closed interval. So this is singleton x, this will give you whole R, and this is also same as union x belongs to R singleton x. So this is another example where arbitrary union of closed interval need not to be a closed interval, need not to be a compact set. आप अगर इस तरीके से डिफाइन करो, से x belongs to Q, closed interval x to x, so it will give you whole rational. Each in this set is a closed interval, but this union is running over Q, so this union is giving you Q. This is not a closed set even, so you can use such type of techniques. अगर आपके पास एक भी टेक्निक आती है तो वहां से infinitely many वे जनरेट होते हैं. ऑप्शन बी इज ऑल्सो पॉसिबल. B is true. Option C, arbitrary union of closed interval in R is always closed. False. You can take this interval. You can take this example. This is union running over Q, closed interval x to x. So this closed interval x to x is nothing but your singleton x, and each x is running from Q. So it will give you whole Q, but Q is not a closed set. क्योंकि इसमें जो इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो R होता है, but R is not contained in Q. So this is not closed. So option C, false. Option D, every bounded infinite subset of V has a limit point in V itself. क्या ज़रूरी है? आपने थ्योरम पढ़ी होगी, every bounded infinite set has a limit point, but उस limit point के उस सेट के अंदर होने की कोई गारंटी नहीं है. You can take many example. See open 0 to 1. 1 is the limit point, but 1 is not inside this open interval. You can generate 1 by n sequence where n is varying from natural number. Here 0 is the limit point, but 0 is not inside this side. So you can construct infinitely many examples. So option D is false. Limit point होगा ये true है, but limit point V में होगा, that is not true. So option A, B, two options are correct. Question number 12. इस टाइप के क्वेश्चन IIT JAM पूछना पसंद नहीं करता क्योंकि ये CSIR वगैरह में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. Let Px is equal to 5 by 13 to the power x plus 12 by 13 whole power x minus 1 where x is running from R, then which of the following is or are true? अगर आप इस फंक्शन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपके पास फंक्शन का ग्राफ आ गया तो यू हैव एवरीथिंग. जैसे आप लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो, फाइनाइट डायमेंशन पे जो डिफाइंड होते हैं. अगर आपके पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया तो आपके पास सब चीज़ आ गई. अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर आप उसका ग्राफ बना पा रहे हो, सो यू हैव एवरीथिंग. बट हर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना इतना ईजी नहीं होता. इस टाइप के ग्राफ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. से पी एट 0 पर वैल्यू कितनी देगा? दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो किसी की पावर 0 इट विल बी 1 प्लस 1 माइनस 1. सो 0 पर इसकी वैल्यू 1 है. And this is exponential function whose value is less than 1. This 5 by 13 is less than 1, 12 by 13 is less than 1. So as x is tending to infinity, it will go to 0. आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं. से आपकी 1/2 की पावर x हुई, so ये भी आपका 0 पर जाएगा as x tending to infinity. तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करेंगे और जो ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो वो हमेशा 0 पर टेंड कर जाएगा. So you can observe limit as x is tending to infinity, this px is tending to 0 plus 0 minus 1. So this value is minus 1. So as x is tending to infinity, it is going to minus 1. And you can observe limit x is tending to minus infinity, this px is going to प्लस इन्फिनिटी. इसको आप इस तरीके से फील कर सकते हो. x की जगह पर पुट करते हैं से माइनस ऑफ y
सो आपका जैसे y इन्फिनिटी पे जाएगा आपका x माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। तो आपने x को y माइनस वाई से रिप्लेस करा, सो योर px फंक्शन इज 13/5 पावर y प्लस 13/12 पावर y माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे आएगा 5/13 की पावर माइनस वाई एंड माइनस वाई पावर है तो ऊपर नीचे कर सकते हो। नाउ एज y is tending to infinity, your x is tending to plus infinity minus infinity, so your px is tending to, it is 5/13, so your base value is bigger than 1, so this will go to infinity, this will go to infinity, and infinity में से अगर आप माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे so it will be infinity। तो माइनस इन्फिनिटी से ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा एंड 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, so this value is, this point is 0 and this value is 1, and as px is tending to, as x is tending to infinity, it is tending to -1। तो यानी कि कुछ ना कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ जाएगा। मोनोटोनिसिटी भी अभी वेरीफाई करते हैं। Why I am making this graph? अगर आप p डैश एक्स निकालो, so p डैश एक्स विल बी a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 5/13 पावर x log of 5/13 प्लस 12/13 पावर x log of 12/13, एंड हियर दिस वैल्यू इज लेस देन 1। अगर log of 1 इज 0 होता है एंड 1 से पहले जितनी भी वैल्यू होती है उसमें log आपको 0 देता है, अगर सॉरी आपको नेगेटिव वैल्यूज देता है अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर logarithm function and this point is 1, so 1 से पहले this graph is negative, so this is positive quantity being an exponential function, this is negative, this is positive and this is negative, so this overall quantity is negative। अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है so this function is in decreasing nature throughout, so function का नेचर हमेशा डिक्रीजिंग मोड में होगा एंड ये -1 पे टेंड करेगा तो एटलीस्ट एक बार तो उसको कट करेगा। एंड कोई भी मोनोटोन फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोन, वो आपके पास वो आपके एक्स एक्सिस को एटलीस्ट वो आपकी एक्स एक्सिस को एटमोस्ट एक बार कट कर सकता है। कोई भी मोनोटोन फंक्शन है क्योंकि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा तो वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट एक बार कट कर सकता है, और एक बार ही कट करेगा क्योंकि एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये -1 पे जा रहा है एंड माइनस इन्फिनिटी पर ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप से होगा। एंड इस नेचर को भी आप अगर पूरी तरीके से वेरीफाई करना चाहो तो वो भी आप कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी से रिलेट कर सकते हो, बट उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई एम नॉट डूइंग दिस। ऑप्शन ए, द इक्वेशन px is equal to 0 has exactly one solution in R, so this will be the solution in R। एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन बी, px is strictly increasing, false। ऑप्शन सी, द इक्वेशन px is equal to 0 has exactly two solution, कोई भी मोनोटोन फंक्शन होगा उसके पास एट मोस्ट 1 सॉल्यूशन होगा एंड एक आपके पास मिल रहा है, तो दो का भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन डी, px is strictly decreasing for all x in R, ट्रू। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, टू ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 13 इज रिपीटेड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन IIT JAM पूछता रहता है। A set is equal to 1/3 power n plus 1/7 power m, then which of the following is correct? N comma m are varying from natural numbers, so we have given a set which is like double sequence, so this is doubly sequence varying over n and m. Then which of the following is or are true? First option, S is closed. Can you give me the limit point of this set? अगर आप n को फिक्स करोगे, अगर आपने n को फिक्स करा एंड m को वेरी कराओ इन्फिनिटी पर, तो जैसे आप इन्फिनिटी पर टेंड कराओगे दिस टर्म विल गो टू 0, सो दिस विल कॉन्वर्स टू 1/3 पावर n, सो दिस सीक्वेंस 1/3 पावर n प्लस 1/7 पावर n विल कॉन्वर्स टू 1/3 पावर n। तो 1/3 पावर n टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे, क्योंकि आप n को जैसे जैसे फिक्स करते जा रहे हो आपके पास ये हमेशा लिमिट पॉइंट बनते रहे। n को आपने 1 पुट करा, m को वेरी करा 1/3 लिमिट पॉइंट, n को 2 करा सो 1/3 स्क्वायर इज अ लिमिट पॉइंट, सो होल 1/3 पावर n इज लिमिट पॉइंट। m को फिक्स करते हैं एंड n को अलाउ करते हैं, n इज रनिंग टू इन्फिनिटी, सो 1/3 पावर n प्लस 1/7 पावर m विल कॉन्वर्स टू
1/7 पावर m, तो आपके पास हमेशा सब सीक्वेंस मिलेगी जब आपका 1/7 पावर m पर ही कन्वर्ज करेगा. सो दिस होल इज द लिमिट पॉइंट. तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे. अब n is tending to infinity, m is tending to infinity. Your doubly sequence will converge to 0. This term is going to 0, this term is going to 0. So 0 is the limit point. So we can say s dash is equal to 1/3 power n union 1/7 power m union 0, where n is varying from n comma m are varying from natural numbers. So this is the collection of all limit points. Clearly 0 cannot generate from here, cannot be generated from here. So 0 is not inside S. So this side cannot be closed. अगर कोई close होता है तो उसके limit point हमेशा उसके अंदर contained होते हैं. So option A false. Option B S is not open. अगर कोई भी not open set है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि काउंटेबल सेट है, क्योंकि n और m के पास काउंटेबल चॉइसेस हैं. सो दिस सेट इज काउंटेबल सेट एंड दिस इज नॉन एम्प्टी सेट. सो एवरी ओपन नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, क्योंकि कोई भी ओपन सेट हुआ तो उसके सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेंगे. अगर एक भी इंटीरियर पॉइंट मिला तो उसके पास पूरा का पूरा ओपन इंटरवल कंटेन होगा, एंड किसी भी ओपन इंटरवल को उसने कंटेन करा जो नॉन ट्रिवियल है, सो दैट सेट हैज टू बी अनकाउंटेबल, क्योंकि ओपन इंटरवल अपने आप में अनकाउंटेबल है एक्सेप्ट द ट्रिवियल वन. ट्रिवियल मतलब जो आपका एम्प्टी सेट है ओपन A to A. So this set is countable and non-empty. So this has to be not open. Option C. So option B true हो जाएगा. This is not open. Option C. S is connected. We know that on R, connected sets are precisely the intervals. This is not an interval. So this is not connected. Option D. 0 is the limit point of S. Clear है? True. So option B and D are correct for this question. Question number 14. Let Sn be a sequence of real numbers given by, they have defined a sequence Sn which is 2 power minus 1 power n 1 minus 1 by n sine of n pi by 2. Then the least upper bound of this sequence. What can you say about the least upper bound? See, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन n इज इवन दिस विल बी 0 बिकॉज ऑफ दिस साइन n पाई बाई 2. अगर n इवन है सो 2 से डिविजिबल हो जाएगा और पाई का जो भी इंटीग्रल मल्टीपल आएगा उसमें हमेशा 0 वैल्यू देगा. सो Sn इज 0 व्हेन n इज इवन. व्हेन n इज ऑड, एंड ऑड में भी इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. n इज लाइक 4n + 1, यानी कि आपके यहां से n के 5, 9 इस टाइप के टर्म जनरेट हो जाएंगे. तो 4 के गैप में आपके टर्म जनरेट होंगे. 5 होगा, देन 9 होगा, देन 13 होगा. अगर इस टाइप का कोई भी एलिमेंट मिला तो जो ये साइन की वैल्यू होगी, साइन 5 पाई बाई 2, एंड n को वेरी से n इज इक्वल टू 4m + 1 वेयर m इज रनिंग फ्रॉम n यूनियन 0. तो आपका 1 भी यहाँ पर आ जाएगा. तो 1, 5, 9 इस टाइप के सारे इंडेक्स बन जाएंगे. अगर इस टाइप के सारे इंडेक्स बन गए, क्लियरली दिस n इज ऑड नंबर. अगर ये ऑड है तो इट विल बी माइनस ऑफ 2 की पावर -1. सो इट विल बी 1/2 एंड इट विल बी 1 - 1 / 4m + 1 into this value will be 1 because sin pi by 2, sin 5 pi by 2, sin 9 pi by 2 इस टाइप के सारे pi by 2 के मल्टीपल 1 वैल्यू देते हैं. सो इट विल बी 1. एंड when n is odd and n is of the form some 4l - 1 where l is varying from natural number. तो यहाँ से आपके इंडिसेस जनरेट होंगे. l की वैल्यू 1 पुट करोगे 3, देन 7, देन 11 इस टाइप के सारे इंडिसेस जनरेट हो जाएंगे. उसमें n की वैल्यू ऑड है, सो इट विल बी 1/2, 1 - 1 / 4l - 1 into -1. एंड यू हैव टू फाइंड द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस Sn. तो सुप्रीमम के लिए यहाँ से 0 मिल रहा है, यहाँ से नेगेटिव टर्म्स मिल रहे हैं. तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव टर्म होंगे. अब आप इसको विजुअलाइज करो. सी, जो आपकी ये सीक्वेंस है, अगर मैं fx फंक्शन डिफाइन करूँ विच इज़ 1 -
1 by x. Clearly this function is increasing function. अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे so f dash x will be 1 upon x square which is throughout positive for every non-zero x. So this f dash x is positive for every non-zero x. So this function is increasing. अगर आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर दोगे नेचुरल नंबर पर तब पर भी इंक्रीजिंग मोड में रहेगा. So this sequence is increasing क्योंकि जो आप यहाँ पर 1 minus 1 by n है आप इसको यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो. So this sequence is increasing. अगर ये इंक्रीज है तो हमेशा अपने सुप्रीमम में कन्वर्ज करेगी. So it will converge to when n is of the form 4m plus 1 your s 4m plus 1 will converge to 1 by 2. So 1 by 2 will be the supremum value क्योंकि ये आपकी 1 पर कन्वर्ज कर जाएगी तब आपको सुप्रीमम मिलेगा. अदरवाइज ये वैल्यू कभी 1 नहीं होगी एंड उसका भी हाफ करोगे तो हमेशा लेस देन हाफ मिलेगा. सो 1 by 2 will be the supremum. So correct answer is 1 by 2. This is numerical answer type. Numerical answer type इस वाले एग्जाम में थोड़ा ईजी है एज कम्पेयर टू द अदर एग्जाम्स जो कि 2017 में 18 में 19 में उनसे ईजी है. क्वेश्चन नंबर 15 is directly application of Cauchy's theorem on limit. Let Sk be a sequence of real numbers such that Sk is equal to k power 1 by k where k is bigger than or equal to 1 and alpha is bigger than 0. So this is alpha. Then what is the value of limit n is tending to infinity s1 s2 sn power 1 by n. So by Cauchy theorem on limit this sequence converges to the limit of Sn where this Sn converges. If your Sn is a positive real number and this Sn is convergent, clearly this Sk sequence is convergent. आप इसको verify कर सकते हो by taking logarithm function then by using L'Hopital rule. So this Sk converges to 1. तो Sk आपकी 1 पर जाएगी. So this sequence is going to 1. So this will go to 1 also. इसको आप logarithm function लेकर के चेक कर सकते हो. You can take log of Sk is equal to अल्फा बाय के लॉग ऑफ के. लोपिता रूल लगाओगे लिमिट के इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड लिमिट को आप अंदर भी ले जा सकते हो बाहर भी ले जा सकते हो बिकॉज दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन दिस डोमेन. सो लॉग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो अब लिमिट पहले आप लिखोगे लिमिट आउटसाइड रहेगी सॉरी पहले लिमिट इनसाइड हाँ पहले आपकी लिमिट इनसाइड है देन आप उसको आउटसाइड निकालो. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी. अदरवाइज इंटरचेंजिंग ऑफ लिमिट इज नॉट पॉसिबल अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो. सो इट विल बी अल्फा बाय के. अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे देन इसके का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1. सो इट विल बी अल्फा बाय के. सो एस के इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज गोइंग टू 0. सो लॉग ऑफ एस के इज गोइंग टू 0. सो एस के विल गो टू 1 because log function is 1 function. So sk will go to 1. So limit of sk is limit of sn is 1 and limit of sn and limit of this sequence is 1 provided your sn is convergent and is a positive real number. So its limit is 1. So this is direct application of Cauchy theorem. क्वेश्चन नंबर 16 इस टाइप के क्वेश्चन जैम में अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है. दिस इज बेस्ड ऑन द टेलर थ्योरम एंड रिमाइंडर फॉर्म. Let f is defined from -1 to infinity, defined as fx is equal to x upon 1 plus x is expressed as fx is equal to 2 by 3 plus x minus 2 by 9 plus c into x minus 2 power 2 upon 1 plus xi whole power q where xi is lying between 2 and x. Then what is the value of c? अगर आप इसको Lagrange form of remainder में लिखोगे up to 3 terms. So your fx will be f of 2 plus x minus 2 f dash at 2 plus x minus 2 whole square upon factorial 2 f double dash at xi where xi is lying between 2 and x. So this is by using Taylor theorem using Lagrange's form of remainder. So this is the remainder term where xi is lying between 2 and x.
तो इसके लिए आपको एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डबल डैश एट एक्स चाहिए. सी वी हैव एफ एक्स, सो योर एफ डैश एक्स विल बी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. 1 प्लस एक्स को रोकोगे, एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा. तो दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स को रोकोगे, इसका करोगे तो 1. सो एक्स इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. एंड एफ डबल डैश एट एक्स फाइंड करोगे, सो एफ डबल डैश विल बी माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 3. अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं. सो योर एफ एक्स विल बी, एफ ऑफ 2 पर वैल्यू देखोगे तो 2/3 प्लस एक्स माइनस 2, एफ डैश एट 2, एफ डैश की 2 पर वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/9. सो इट विल बी 1/9 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एट जाई, इसकी जाई पर वैल्यू फाइंड करोगे तो माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस जाई होल क्यूब. सो यू आर अप्रोक्सीमेटिंग योर फंक्शन बाय यूजिंग दिस पॉलिनोमियल. तो अगर आप इस फंक्शन को देखोगे, यहाँ से कंपेयर करोगे, सो योर सी वैल्यू विल बी -1. आप इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करोगे तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 प्लस जाई की पावर 3, एक्स माइनस 2 की पावर 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 इंटू -2 है, सो इट विल बी -1. कंपेयर करोगे तो सी वैल्यू विल बी -1. सो करेक्ट आंसर इज -1. क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज इंपॉर्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चन में लोग हमेशा गलती करके आते हैं, बट जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझना. द रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n is running from 1 to infinity minus 4 power n upon n into n plus 1 and x plus 1 whole power 2n. अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि जो आप पावर सीरीज पढ़ते हो वो इस फॉर्मेट की होती है. समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सम सीक्वेंस an x minus a to the power n. So this is expanded or expressed about the center a, and here your center is -1. So ये चीज़ क्लियर है, this center is -1. 1 second. ठीक है, but here your power is 2n, but here the power is n. अगर आप डेफिनेशन यूज करोगे ROC की, your radius of convergence, if your radius of convergence is r, then 1/r is given by limit superior of an whole power 1/n. तो यहाँ से अगर आप जाओगे, here your sequence is -4 to the power n, so limit superior of sequence mod लेना है तो -4 की जगह आप 4 लिख सकते हो. so it will be 4 power n upon n into n plus 1 whole power 1/n. अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे, so it will give you 1, sorry it will give you 4, it will give you 4, but this will be the radius of convergence provided your this value is n, not 2n. तो आप 2n के केस में ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते. या तो आप इसको क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी पावर सीरीज है उसको आप n टाइम डिफरेंशिएट करो या कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो, तो जो आपके पास रिमेनिंग पावर सीरीज आएगी उसकी जो रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस होगी और इसकी रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस हमेशा सेम होती है. तो आप ये कर सकते हो कि इसको आप n टाइम डिफरेंशिएट करो, क्योंकि n टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद इसके जो x प्लस 1 की पावर 2n है, -1 -2 अप टू -n करोगे तो n टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद पावर n हो जाएगी. देन जो डिफरेंशिएटेड सीरीज आएगी वहाँ से आप कर सकते हो. बट उसके अलावा एक और मेथड है, बट दिस मेथड इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन. अब ये हमेशा यूज़ नहीं कर सकते. इसको इस टाइप से देखिए, अगर मैं रेशियो टेस्ट यूज़ करता हूँ और से nth रूट टेस्ट, nth रूट टेस्ट से अगर इस सीरीज की मॉड वैल्यू लेस देन 1 हो जाए एज लिमिट एज n is tending to infinity, then this converges. So limit n is tending to infinity, mod of an whole power 1/n is less than 1, then this series is convergent where this an is whole sequence, not this term only. क्योंकि जो आप रेशियो टेस्ट यूज करते हो उसमें आप पूरी की पूरी टर्म लेते हो. एंड आई एम यूजिंग द रूट टेस्ट. सो लिमिट n is tending to infinity an, मॉड है तो आप -4 की पावर n की जगह 4 की पावर n लिख सकते हो. 4 पावर n, n इंटू n प्लस 1 होल पावर 1/n
is less than 1. So it will be 4, sorry, I have left this term. This is x plus 1 whole power 2n whole power 1 is less than 1. So it is same as limit n is tending to infinity 4 x plus 1 square upon n into n plus 1, this power 1 by n less than 1. तो अब लिमिट को चाहे तो यहाँ पर ले जा सकते हो, या एज लिमिट एज n is tending to infinity it will go to 1. So it will be x plus 1 mod square is less than 1 by 4. So it mod of x plus 1 is less than 1 by 2. एंड जो रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस लिखते हो आप, वो लिखते हो मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन r. सो इस इंटरवल में आपकी जो सीरीज होती है वो हमेशा कन्वर्ज करेगी. सो यू कैन वेरीफाई इन दिस डोमेन योर सीरीज विल कन्वर्ज ऑलवेज, बिकॉज वी आर यूजिंग द वे और वी आर डिफाइनिंग इन दिस वे दिस लिमिट इज ऑलवेज लेस देन 1, एंड इन दिस कंडीशन दिस सीरीज कॉन्वर्जेस एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पर आप मॉड ले रहे हो तो ये हमेशा आपकी मॉडुलस में अगर आप ले रहे हो सो इट विल कॉन्वर्ज एब्सोल्युटली. सो इन दिस डोमेन दिस सीरीज विल कॉन्वर्ज absolutely. So your 1 by 2 will be the radius of convergence. So ROC will be the 1 by 2. So this is one way and there is another way. चलिए उसकी मैं आपको हिंट देता हूँ, ट्राई करना. अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में वेरीफाई कर सकते हो, एंड अगर डाउट हो, इफ़ यू नीड फुल प्रूफ यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. अगर आप इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन अलाउड होता है अगर आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के इंटरवल के अंदर हो. अगर आपकी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो आप हमेशा उसको टर्म वाइज इंटीग्रेट, टर्म वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हो. एंड अगर कॉम्प्लेक्स में बात करो तो अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो हमेशा उसकी पावर सीरीज एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के नेबरहुड में, तो वहां पर भी आप टर्म वाइज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हो. अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे इसकी पावर 2n-1 हो जाएगी. इसको n बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी जो पावर है वो n हो जाएगी. सो इसको डिफरेंशिएट करो n बार. सो लेट मी कॉल दिस एज अ px. अगर आप इसको n टाइम डिफरेंशिएट करोगे सो दिस विल बी -4 पावर n इंटू n प्लस 1. एक बार डिफरेंशिएट करा तो पावर 2n हो गई, दो बार करोगे तो 2n-1 हो जाएगी, तीन बार करोगे तो पावर 2n-1 हो जाएगी, अगर n बार करोगे तो 2n माइनस ऑफ n-1 हो जाएगी, क्योंकि आप जितनी बार करो उससे माइनस एक बार कम आ रहा है. एंड दिस विल बी x प्लस 1 होल पावर 2n-n, दैट विल बी n. तो आपके पास ये आ जाएगा. अगर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओ कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ मॉड ऑफ an होल पावर 1/n, वेयर लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुपीरियर मॉड ऑफ an, बट योर an विल बी mod of -4 power n upon n into n plus 1, 2n minus 1 and 2n minus n-1 whole power 1 by n. तो अगर आप इस वैल्यू को वेरीफाई करोगे सो दिस वैल्यू विल बी 1 by 2, सॉरी दिस वैल्यू विल बी 2 एंड r विल बी 1 by 2, क्योंकि आप डिफरेंशिएटेड सीरीज की पावर रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस लोगे तो वो एंड जो एक्चुअल सीरीज है उसकी रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस हमेशा सेम रहती है. एंड हियर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज ऑफ दिस n. सो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द पावर सीरीज. सो वेरीफाई करना है इसको. सो आंसर विल बी 1 by 2 फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट. लास्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस. The value of limit n is tending to infinity a10-1 by n minus 1 power n upon n square. What is the value of this limit? इसको दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं सिर्फ मैं n को इवन के लिए सॉल्व करता हूँ, आप n को ऑड के लिए सॉल्व करना. लेट मी कॉल दिस लिमिट एज लिमिट n is tending to infinity a10-1 by n. Since n is even, so minus 1 power n will be 1. So 1 upon n square. We can take logarithm function. So log of a will be, अब जब आप log लोगे तो आपका log बाहर आएगा, लिमिट अंदर आएगी, but log function is continuous, that is why you can interchange your limit. So it will be log of limit
n is tending to infinity 8n minus 1 होल पावर 1/n और 1/n स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं, एंड दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू लिमिट n is tending to infinity 1/n square log of 8n minus k 1/n. So this term and this term both are equal because of the continuity of your log function. अगर यहाँ फंक्शन कोई नॉट कॉन्टिन्यूस है तो आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ये आप सीक्वेंशियल डेफिनेशन से पढ़ते हो कॉन्टिन्यूटी की. सो दिस विल बी लिमिट n is tending to infinity, this is going to infinity, this is going to infinity, so we have infinity by infinity form. So we can use the L'Hopital rule. It will be 1/8n minus 1/n. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 प्लस 1/n स्क्वायर, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल बी हैविंग 2n. Now we can solve this. It will be 8n square plus 1 upon n square. From here I will be having 8n square minus k1 and 2n also I have. अब जो आपकी नीचे पावर है या नीचे जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री लार्जर है ऊपर वाले पोलिनोमियल से, तो अगेन आप दो बार जैसे लोपिता रूल यूज करोगे तो ऊपर से n रिमूव हो जाएगा, नीचे n बचेगा क्योंकि यहाँ पर n की जो पावर है पोलिनोमियल की पावर वो 5 आ रही है. सो एज n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट विल कन्वर्ट्स टू 0 क्योंकि जो नीचे वाला पोलिनोमियल है वो लार्जर डिग्री का पोलिनोमियल है. सो योर a विल कन्वर्ट्स टू 1 बिकॉज log of 1 is 0 and log function is 1 so a will be 1 only. So correct answer will be 1 for this question. I hope कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. Still if you have any doubt you can ask in the comment section. You can do WhatsApp me also, and if you have any suggestion for us you are always welcome. Thanks for watching this solution series.